Hello student, today we again discuss about the chapter number 1 from part 1, the class 12. 12th class के हम chapter 1 यानी कि lesson 1 fundamental of human geography, that is the name of the part, and the name of the lesson is human geography. According to this video today we will discuss the different types of content. Firstly, you can say what is the meaning of the human geography. How can you describe the nature and scope of human geography? What is the meaning of the naturalization of humans? What is the meaning of the humanization of nature? What is the meaning of possibilism? What is the meaning of determinism? What is the meaning of neo-determinism? And what are the major schools of the human geography? You can say humanistic school of human geography, रेडिकल स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बिहेवियर स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. आज हम पार्ट 1 क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 है मानव भूगोल. मानव भूगोल का क्या अर्थ है, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र क्या है, मानव का प्राकृतिकरण का क्या अर्थ है, प्रकृति के मानवीकरण का क्या अर्थ है, संभववाद किसे कहते हैं, निश्चयवाद किसे कहा जाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है. मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, जिनमें कल्याणपरक विचारधारा, रेडिकल विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा. देयर आर द 3 schools of the human geography. Now we will discuss in details. First, what is the meaning of geography? Geography is the branch of science which tell us about the relationship between the man and earth. That is known as the geography. That is divided in 2 parts. First, physical geography and second is human geography. Physical geography tell us about of the physical features impact on the human being, and the human geography second part, second type, human geography tell us about of the interrelationship impact of human on the earth and impact of the earth on the humans and its relevant features. That is known as the human geography. That's clear, the definition. मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा जो हमें मानव और पृथ्वी के अंतर संबंधित अध्ययन कराती है. पृथ्वी किस प्रकार मानव को प्रभावित करती है, मानव किस प्रकार पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालता है, उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं. वैसे भूगोल है क्या? भूगोल वह शास्त्र है जिसे हम पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे भूगोल कहते हैं. अब 2 प्रकार मैंने बताए, पहला ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइन कर चुके हम, दूसरा है इसका फिजिकल ज्योग्राफी जो हमने 11th क्लास में डिस्कस किया. उसमें हम ये कह सकते हैं कि जितने भी भौतिक तत्व होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इनका अध्ययन जो है उसमें करते हैं. फिजिकल फीचर्स का अध्ययन उसमें करते हैं, भौतिक तत्वों का अध्ययन उसमें करते हैं. वो भौतिक भूगोल कहलाता, जो कि 11th में हमने डिस्कस किया. तो भूगोल क्या है? मानव भूगोल और भौतिक भूगोल 2 पार्ट इसकी मेन है. तो मानव भूगोल क्या है वो भी हमने अध्ययन किया. नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्लियर. ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप. व्हाट इज द नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी एंड व्हाट आर द स्कोप ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी? If we study about of the different types of elements related to human geography, then you can say there are the transport, population density, distribution, and some types of the elements are impact, especially impact on the features of the human being related to trade, communication, and other method also. These types of study in brief, that is known as the nature of the human geography. And if you think about of the scope of human geography, then you can say that is the wide area. There are the wide scope of the human geography. We can say if we study in details in nature, for example, density of population, then what are the major factors of impact on the density? What is the quantity of the density of population, different types of area, which types of factor effect on the density, what are the effect of the over density of the population in area. Means these are the in details
density, transport, communication, human settlement, trade, communication. If we study these types of element in details, that is the scope of the human geography. मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? प्रकृति इतना है कि उसमें हम जनसंख्या क्या है, घनत्व क्या है, वितरण क्या है, कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, व्यापार क्या होता है, संचार क्या होता है, परिवहन क्या होता है, उनको ब्रीफिंग में अध्ययन करते हैं। वो उसकी प्रकृति है। जैसे हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम पूछें, उसका नाम, उसका व्यवहार, उसकी रंग, आकार, शकल, वो उसकी प्रकृति है उस व्यक्ति विशेष की। और उस व्यक्ति विशेष के स्कोप पूछे तो उनके रिलेटिव्स आ जाएंगे, उनके भाई बहन आ जाएंगे। इसी तरह मानव भूगोल में प्रकृति में हम ब्रीफ में अध्ययन करते हैं और स्कोप में ये चीजें डिटेल में हो जाती हैं कि घनत्व क्या है, वितरण क्या है, कौन से कारक प्रभावित करते हैं, परिवहन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, उन सभी का डिटेल में अध्ययन वो स्कोप में शामिल है। तो नेचर एंड स्कोप, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन? मानव के प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं? दैट इज ए एंशिएंट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी कैन से human is bound in the different types of the norms of nature and we are not succeed to able changement in the different types of equipment and other than environment by the help of technology. We have no knowledge. We thanks to the nature in each types of field when the nature provide us different types of resources. That is known as the naturalization of human. ये एक ऐसी अवधारणा जिसमें ये बताया गया है कि हम समय समय पर प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। हम बंधे हुए हैं, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसे मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। ना हमारे पास इलाज के लिए कोई विशेष तकनीकी है, केवल हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त दवाइयां हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं। ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मीन्स वी टोटली बाउंड इन द नॉर्म्स ऑफ नेचर. That is known as the naturalization of human. And the second is relate to it, humanization of nature. प्रकृति का मानवीकरण. That is opposite of the naturalization of human. Why? Because that is the opposite situation. According to humanization of nature, we can say we can change in the nature by the help of technology. We succeed to able in the change in the environment. We succeed to cross the different types of water bodies, and we also able to change in different types of field related to the human being. यानी कि वो ये ऐसी अवधारणा है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमने समुद्रों को ऊपर पुल बना दिए हैं, हमने नदियों के ऊपर पुल बना दिए हैं, हमारे पास अनेक बीमारियों पर अंकुश लगाने के साधन हैं, हमारे पास वो तकनीक है जिससे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसे हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। दैट इज नोन एज द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. दैट्स आल्सो क्लियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिज्म? ये क्लियर हो गया भी हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिज्म? What is the meaning of determinism? What is the meaning of neo-determinism? According to possibilism, we can say possibilism is a process in which the geographer tells us we are winner on the earth. We can change in different types of elements of the nature. That is known as the possibilism. ये ऐसी अवधारणा जिसमें ये बताया गया है कि हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, हमारे पास तकनीकी आ गई है, हमने नदियों पर पुल बना लिए हैं, वो संभववाद कहलाता है। पॉसिबिलिज्म उसको कहते हैं। नेक्स्ट है डेटरमिनिज्म, निश्चयवाद। इसे न्यू डेटरमिनिज्म भी कह देते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कह देते हैं, इन्वायरमेंटल डेटरमिनिज्म भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वी कैन से वी आर बाउंड इन द नॉर्म्स ऑफ नेचर दैट इज स्पेशली बेस्ड ऑन द एंशिएंट टाइम. We have no knowledge, we are not educated, we are not able to change in different types of the elements of the nature. We bound in the norms of nature. That is known as the determinism. उसे निश्चयवाद कहते हैं.
इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है, जिसमें हम प्रकृति के सभी तत्वों का थैंक्स करते हैं। प्रकृति जो हमें तत्व प्रदान करती है, पर्यावरण जो हमें देता है, उसका धन्यवाद करते हैं हम। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार की जो चीजें प्राकृतिक तौर पर हमें मिलती हैं, उसमें भी प्रकृति का हम थैंक्स करते हैं। उसे हम डेटर्मिज्म कहते हैं। नियो डेटर्मिज्म, दैट इज ए न्यू कंसेप्ट, और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वी कैन से वी आर नॉट बाउंड, वी आर नॉट विनर, that is the adjustment for a short time. If you think about of the red and green light, then you can say on the red light we stop, after green light we move. That is known as the new determinism. That is the adjustment for a short time to complete the requirement of people, to complete the requirement of different types of population. तो संभववाद, निश्चयवाद और नव निश्चयवाद, तीनों को हमने डिफाइन किया। नव निश्चयवाद में हमने बताया, इसमें इसे स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ की अवधारणा भी कहते हैं, और इसे डेटर्मिज्म को हम पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं, जिसमें हम बाउंड हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है परिवर्तन का, हम प्रकृति का धन्यवाद करते हैं बार बार, वो निश्चयवाद कहलाता है। न्यू डेटर्मिज्म एक तालमेल, थोड़े समय के लिए, ना हम विजय प्राप्त किए ना हम बाउंड है। एडजस्टमेंट, जैसे हम रेड लाइट पर रुकते हैं और ग्रीन होने पर फिर चल पड़ते हैं, ठीक उसी तरह पर्यावरण के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट, ये आपका न्यू डेटर्मिज्म कहलाता है। आगे, व्हाट आर द मेजर स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये तीनों क्लियर हो गए भी हमारे, संभववाद, निश्चयवाद और नव निश्चयवाद। स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? There are three schools of the human geography: humanistic, radical, and behavioral. There are three types of the schools of the human geography. मानव भूगोल के यहाँ पर तीन स्कूल्स हैं: मानवतावादी या कल्याणपरक, रेडिकल और व्यवहारवादी। फर्स्ट है ह्यूमनिस्टिक। According to humanistic, we study the different types of aspect promoted by the government to provide the different types of facility related to health, related to education, related to water, related to food, to all types of the people of the country. That is known as the humanistic school of the human geography. मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा क्या है? जिसमें सरकार लोगों को शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, अनेक सुविधाओं से परिपूर्ण करती है, उनको विकसित करती है, इसका अध्ययन इसमें करते हैं, उसे मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा कहते हैं। Radical schools of human geography, according to this school of human geography, we can say that is based on the Marxism theory. Why the difference created between the rich and poor people? What are the causes responsible for it? This study is done by the human being in these types of school. रेडिकल वो विचारधारा है जिसमें मार्क्सवादी सिद्धांत को अपनाया गया है, और ये बताया गया है कि भी अमीर और गरीब के मध्य अंतर क्यों होता है, कौन से कारण हैं जो ये अंतर बनाते हैं, इस अंतर को क्रिएट करते हैं, उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है, और मार्क्सिज्म सिद्धांत का प्रयोग किया। थर्ड है बिहेवियरल स्कूल। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल स्कूल वी कैन से दैट इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द human beings. What is the behavior? Adopt you. What is your nature? What is your way of talking? What is your culture? What is your education? What is your life experiences? These are involved in this type of school of human geography. व्यवहारवादी विचारधारा मानव भूगोल की वह है जिसमें हम उसके व्यवहार, उसकी प्रकृति, उसके रीति रिवाज, उसका परिवेश, उसका खान पान, उसके जीवन के अनुभव, उन पर आधारित होती है। उसे धर्म जाति भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम व्यवहारवादी विचारधारा कहते हैं। दैट्स आल्सो कंप्लीट। आज हमने जो क्लियर डिस्कस किया है भाई, उसमें हम देखेंगे पार्ट 1 ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर हमारा 1, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय चित्र, ये हमारा क्लियर किया हमने। दूसरा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मानव का प्राकृतिकरण।
तीसरा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। फोर्थ नंबर पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमिनिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू डिटरमिनिज्म, यानी संभववाद क्या है, निश्चयवाद क्या है, नव निश्चयवाद क्या है। बीच में दो कंसेप्ट हमारी आई गई थी, स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के प्रमुख स्कूल क्या क्या हैं, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियर। टुडे अगेन आई ट्राई फॉर माय बेस्ट, एंड इफ यू लाइक माय चैनल, प्लीज like my video and subscribe my channel, and please decide your target to achieve the highest marks in geography. Stay home and be happy. Thanks to